In interview during personality test, listening question properly is the most important aspects. In some questions, interviewer will take little pause and will ask further question. So as soon as they finish asking question, don't jump to the answer. Sometimes what happens, in one question, they are asking two questions, or sometimes they want to add some explanation, then they are asking for your opinion. So once they are finished, take gap of 3 to 5 seconds, depending on. Don't just jump on the answer. Once they are finished, now if you think yes, they are finished, then you have to say. There are certain factual questions. They in your factual question, you can reply. If you are knowing answer, you can reply instantly. That is not a problem. But wherever opinionated question is there, or you need to jot down some point mentally, or you have to frame answer mentally. In some questions, you can ask for permission, 10 second, 20 second, not more than 20 second. Or in general, you can say, can I take 10 seconds? In any case, you will not say more than 20 seconds because the question they are asking, it requires mental calculation, and they are assuming every candidate came to interview board after much preparation, and they are also knowing mock interview and all facilities are available. The person who is in interview board is not alien. They are also aware about what all are happening in the market. They are also observing YouTube and other things. They are seeing things. So they are knowing you at least serious candidate. They have given adequate time to their preparation. So take in general 3 to 5 seconds while replying. And once you are not knowing answer, you can say a straightforward, I'm not knowing. Or in spite of that, if they are asking, you can take intelligent guess, then you should take guess. But that guess should be, or you can say, I'm not able to guess closely. Still, if they are insisting, then say a few number or few things or few some words. Okay. तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका पेस है, जो बोलने का पेस है, वो इंटरव्यूअर के अनुसार चलना चाहिए। यदि वो थोड़े से फास्ट है तो आपको भी थोड़े फास्ट होने पड़ेंगे। यदि वो थोड़े स्लो है तो आपको थोड़े स्लो में चलना पड़ेगा। 20-30 मिनट्स का ये गेम है, उसमें से आप जितने अच्छे परफॉर्म कर पाते हो उतना बेटर है। तो हमेशा कभी भी है जंप नहीं कर जाना है। जैसे फेमस इसमें से आता है एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी का। जर्नलिस्ट बहुत सारे बोलते हैं जिन्होंने उनसे इंटरेक्ट किया, अब तो वो हमारे बीच नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो कहते हैं कि जब उनसे आप इंटरव्यू करने जाओ तो समटाइम ये होता था कि अब लगेगा कि अटल जी अब चुप हो रहे हैं, आपने जैसे ही कुछ बोलना शुरू किया तो फिर वो बोलना शुरू करें। अब यदि कोई प्राइम मिनिस्टर है तो आप तो उसको उनके अनुसार चलोगे, तो वो एक वैसे सिचुएशन नहीं होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि यस अब स्टॉप होने वाला है, फिर भी 3 से 5 सेकेंड का जनरली गैप लेना चाहिए। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके आप आंसर जानते हो वैसे, तो उसमें आप बता सकते हो। अब जैसे सिंपल पूछती है कि हाँ जी आपके जो स्टेट ये आपके एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, तो आप जानते हो तो उसमें कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं जानते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हो, और एकदम नहीं जानते हो तो बोल दो आई डोंट रिमेम्बर, या आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम और हर नेम व्हाटसोएवर। तो पॉज का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, गैप थोड़ा सा लेने की जरूरत है। आपको भागना नहीं है ना, आपको उनके अनुसार चलना है। आप अपनी मर्जी से नहीं कहोगे चलिए 4-5 क्वेश्चन जल्दी से पूछिए हमको जाना है, नहीं।
वो जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, कोई 1 घंटा आपको बैठाएंगे तो कोई 1 घंटा बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि अब हो गया आपने तो कोई टाइम देखो, इन नॉर्मल उनके पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है। जैसे आप देखोगे एसएसबी में क्या है, आपको 5 डेज का प्रोग्राम रहता है, और ऑब्वियसली जो फर्स्ट डे आउट हो गए उनको छोड़ करके 5 डेज रहना पड़ता है, तो वहाँ हर एक्टिविटी ऑब्जर्व की जाती है। इस इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन भर बैठाए हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं। ये 20-25 मिनट्स का है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो कभी भी आप अपने अनुसार नहीं भागो, उनके अनुसार चलने की कोशिश करो, और उस आधार पे चलो। आपको उनको सेटिस्फाई करना है, बोर्ड को सेटिस्फाई करना है, आपको खुद को सेटिस्फाई नहीं करना है। इफ बोर्ड इज सेटिस्फाइड, बोर्ड सेटिस्फाइड मीन्स मोर मार्क्स। अब बोर्ड सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि आप जो वो जो सही नहीं है उस चीज को भी बोल दोगे, नहीं। बोर्ड सेटिस्फाई का मतलब है कि वो जिस पेस में ले जाना आपको चाहते हैं, जहां आप आंसर्स ओपिनियंस में आपको लगता है कि आप डिफर कर रहे हो, आपको अपने ओपिनियन में लगता है सही है, तो आप डिफर कर भी सकते हो। लेकिन डिफर करने का ये मतलब नहीं है आप अपोजिशन नहीं हो कि अननेसेसरी डिफर करोगे। लेकिन जहां आप अपने ओपिनियन में फर्म हो, तो वहां होने की कोशिश करना है, और मैक्सिमम आपको कोशिश करना है जितना अधिक से अधिक मार्क्स आ पाए। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।